Here, keep it. Bohr's theory of hydrogen atom, atomic radii, we will calculate on the Bohr's quantization. Bohr's theory, we will calculate the atomic radii. Here, electron revolves. Suppose electron revolves around the nucleus. If atomic number it is Z, so charge on nucleus it is Ze, or electron charge is E. So the force, electrostatic force between the nucleus and the electron, this F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, Zd into E upon R square. इसको हम K ले सकते हैं, तो K Zd square upon R square. Electrostatic force provides the necessary centripetal force, so F is equal to mv square upon R. Therefore, this R cancelled out, so mv R is equal to K Zd square upon V square. According to Bohr's quantization condition, angular momentum L mvr is equal to nh upon 2 pi. Clear? According to Bohr's quantization condition, L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. So R is equal to nh upon 2 pi mv. इसको अगर 1 ले लें और इसको 2 ले लें, तो both from 1 and 2, from 1 अरे यार from 1 and 2, here nh upon 2 pi mv, it is equal to K Zd square upon mv square. Here v cancelled out. Try to understand. What will be the velocity? V is equal to 2 pi m K. Here m is also cancelled. M is also cancelled. So here 2 pi K. This is V is equal to 2 pi K Zd square upon nh. This is the velocity. हम ले सकते हैं it is 3. Putting the value of V in equation 1. Here you see, it 2 में put करो, note down. Putting the value of V in equation 2, what you get here? It is equal to nh upon 2 pi m. What is the value of V? V की वैल्यू हो जाएगी, it is 2 pi K Zd square upon nh. Try to understand. V के प्लेस पर V की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दिया? इसमें. So what we get? nh upon 2 pi m. In place of V, 2 pi K Zd square nh. So this R is equal to n square h square upon 2 pi 4 pi square m K Z E square. This is the radius. This is the atomic radius. Here R is directly proportional to n square. तो डिफरेंट ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा?
this is 1, 2, 3. If you put R is equal to 1, 2, 3, then what will be the ratio? R is directly proportional to 1 square means 1. It is 2 square 4 and 3 square 9. तो डिफरेंट ऑर्बिट्स का जो रेशियो आ जाएगा दैट इज 1:4:9:16 एंड सो ऑन. तो कभी स्क्वायर के मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो होता है. तो ये देख लेना, ये कभी 1 मार्क में पूछा जा सकता है. तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. अब हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. In hydrogen atom, total electricity of electron in hydrogen atom, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम तक ही वैलिड था इसका ड्रॉबैक. तो हाइड्रोजन एटम here electron, suppose here electron revolves around the nucleus. हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. Nucleus has the same positive charge as the charge on electron, 1 proton और एक इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 q1 q2 upon r square e square upon r square. Is it clear? So this is equal to k e square upon r square. And electrostatic force provides the necessary centripetal force. This electrostatic force provides necessary centripetal force. It means the necessary centripetal force mv square upon r, it is equal to k square upon r square. This r cancelled out. Is it clear? So mv square it is equal to ke square upon r. Therefore kinetic energy it is equal to half mv square, and this is equal to ke square upon 2r. Kinetic energy. And the electrostatic potential energy, static potential energy, it is equal to, दिख रहा है? Yes sir. 1/4πε0 q1 q2 upon r square. तो e into minus e upon r, 1/4πε0 q1 q2 upon r. Therefore this potential energy it is equal to minus ke square upon r. This is kinetic energy, this is potential energy. Total energy of the revolving electron, therefore total energy of revolving electron
it is kinetic energy plus potential energy. It is equal to k E square upon 2r minus k E square upon r. Here minus k E square upon 2r. Is it clear? This is minus k E square upon 2r. यही हमारे पास टोटल एनर्जी E हो गई. Therefore this total energy, टोटल पूछा जाता है टोटल एनर्जी इज नेगेटिव. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that, negative sign indicates that the electron is bound to revolve around the nucleus. Negative sign indicates that electron is bound to revolve around the nucleus. इसको पहुंच कर दूँ. Here total energy is equal to minus k Z square upon 2r. Kinetic energy is equal to k square upon 2r. Potential energy minus k square upon r. Therefore kinetic energy is equal to the minus of the total energy. माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी. तो अगर टोटल एनर्जी गिवन है तो हमें काइनेटिक पूछता है तो टोटल केवल माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे काइनेटिक एनर्जी और उसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी पा जाएंगे. ये ध्यान में रखना. A total energy of the electron in the nth orbit. Now total energy of the electron in the nth orbit. इसके बाद total energy of the electron, total energy of electron in nth orbit, nth orbit. अगर nth orbit की बात है total energy of electron in nth orbit, so putting the value of the r in this total energy, putting the value of this r in the total energy, तो हमारे पास total energy ये है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2, r के प्लेस पे ही पुट कर देंगे तो दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर. तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी. इसको हम टोटल एनर्जी को En से डिनोट करेंगे और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड e to the power 4 अपॉन m स्क्वायर h स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस. ये ध्यान रखिएगा. तो हमारे पास En इट इज इक्वल टू यही टोटल एनर्जी En एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट माइनस 4 पाई स्क्वायर. केमिस्ट्री में इस तरह का देखे होंगे. नहीं सर वो अच्छा तो ध्यान NH इसको रखो. टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड ई टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. यही टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. वो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा. कौन सा? तो 2r है, r के मतलब हाँ सर नीचे 2 नहीं रखते हैं. के जेड स्क्वायर टोटल ऊपर 2 लिख ये दीजिए. जो के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर की वैल्यू पुट किया ना तो हाँ 2 हो जाएगा. ये 2 हो जाएगा. हाँ 2 हो जाएगा. ठीक 2 है भी माइनस 2 पाई स्क्वायर. हाँ ध्यान रखना ये वैल्यू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड डी टू पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर. It is the total energy of the electron in the nth orbit. For hydrogen atom ध्यान में रखना. For hydrogen atom Z is equal to 1 पुट कर देंगे. Clear? और if we put the value
अब पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, एच का वैल्यू, तो हमें वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रॉन, वी पुट ऑल द वैल्यूज, सब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, के की वैल्यू हमें मालूम है 9.49, ई की वैल्यू मालूम है Z1 होगा, एन तो एच की वैल्यू 6.60 10⁻34, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान में रखना, यही वैल्यू हमारे पास आ जाती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर करना। तो ये हमारे पास हो जाएगा En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारे पास एनर्जी एनर्जी of the electron in the hydrogen atom in the nth orbit। तो ये ध्यान में रखना, ये एनर्जी है। अभी कितने मिनट का? 16। अच्छा, अभी तो चलेगा। इधर देख लेना ये टोटल एनर्जी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल here you see, energy level of hydrogen atom in ground state by energy E1 it is equal to -13.6 upon 1, तो -13.6 electron volt। Here E2 is equal to -13.6 upon 2 square, -3.4 electron volt। Here E3 -13.6 upon 9, 3 का क्यूब मीन्स 9 ना, तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? सिमिलरली इट इज 4, सर वहाँ 4 लिख दिए। कितना? E2 इसमें 2 स्क्वायर, अच्छा चलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके करोगे, ऐसे डायरेक्टली कभी समझ आ रहा? तो इट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पर है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 इट इज इक्वल टू -13.6 upon 5 square, it is -0.37 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ऐसे ही E6 भी अगर देखोगे तो -13.6 अपॉन 6 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is the different energy states of the electron। यहाँ पे देख लेना एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी डिफाइंड एज, नोट डाउन, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नोट डाउन, कैन बी डिफाइंड एज, इट इज the energy of the different, can be defined as, it is the energy of the different stationary states, different energy states are represented by different stationary different energy states
are represented by the horizontal line, are represented by the horizontal line. देख लेना ऐसे, एक हमारे पास एनर्जी स्टेट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको शो करते हैं। n इज इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6। देख लेना, यही एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम का सिंपल सा मतलब ये है कि हम डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट इसको कहते हैं, n इज इक्वल टू 1, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। Here n इज इक्वल टू 2, इसको कहते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही यहां पे ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 3, और ये कितना हो जाएगा -1.51। n इज इक्वल टू 4, और 4 पे वैल्यू आ रही है -0.85। ये एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ध्यान में रखना, यही दिखाने को आता है। तो ये फिर आगे ऐसे ही जाएगा, थोड़ा सा घटता चला जाएगा, ऐसे आगे ही घटेगा थोड़ा सा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.54, -0.54, फिर और कम हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। तो दैट इज n is equal to 4, it is n is equal to 5, it is n is equal to 6, और फिर -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा पढ़े भी होंगे। और देखो, when electron jumps, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अगर ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट में अगर किसी भी ऑर्बिट से जंप करता है, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इट इज नोन एज द लाइमन सीरीज। तो ध्यान में रखना, इसको केयर करना। ये वैल्यू थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे भी हम लोग, क्योंकि इसमें सब लाइमन, बामर, पाशन, फुल सब। ये वैल्यू होती है, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। लाइमन सीरीज, ध्यान रखना, लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता, इसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। ये स्पेक्ट्रम हमें दिखता नहीं अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन। सेकेंड होता है, सेकेंड ऑर्बिट में जो जंप करता है, लाइमन, बामर, ये हमें दिखता है। फिर से बता, ऐसे ही चला जाएगा। तो लाइमन, बामर, फिर और इसी तरह से और जंप करेगा, तो लाइमन, बामर, ये बामर हो जाएगा। और ये विजिबल रीजन में आता है, विजिबल रीजन। ये हमें दिखता है। और इसके बाद यही एक है बामर सीरीज जो दिखती है,
और कोई नहीं दिखता। इसके बाद सब इंफ्रारेड में जाता। ये हमारे पास पासन, ये लाइमन बामन पासन, PAS पासन। और एक पासन हमारा किस रीजन में रहता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में इंफ्रारेड हो जाता है। और फिर लाइमन बामर पासन ब्रैकेट, ब्रैकेट आता है। और इस लाइमन बामन पासन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आता है CKETT। ये भी अल्ट्रा, ये इंफ्रारेड में भी आता है, इंफ्रारेड। और एक लास्ट में आता है ये सब थोड़ा सा पढ़े भी होंगे। तो इंफ्रारेड और एक फिर ब्रैकेट फुल, PFUEND फुल। This is the energy level of hydrogen atom. Energy level diagram of hydrogen atom. Energy level diagram of hydrogen atom. ये बात समझ आ रही? तो लास्ट में पहले PFUND फुल। P साइलेंट होता है तो फुल करते हैं। ये भी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। हाँ, P फुल। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम भी लिख लेना जी। एनर्जी लेवल डायग्राम, डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही हमारा ये दिखाने का था। इसमें आपकी बार यही सुपर हिट है, क्योंकि यही पूछने लायक है इसमें। बात समझ आ रही? तो इसको ध्यान में रखना। और लिख लेना लिमिटेशन ऑफ बोर्स बना ले एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन थोड़ा लिख लेना। सर एक मिनट सर, ऐसे पूछते हैं। हाँ, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सर एक मिनट सर, अभी क्लियर कर दीजिए। सर बना ले। सर वो क्या लिखिए सर? इंफ्रारेड जस्ट बता दें। इंफ्रारेड रीजन इस सब, ये तीनों इंफ्रारेड में आता है, ध्यान रखना। ये हमने वो क्या लिखे सर? वो ब्रैकेट BRACKETT। क्या है सर? ये ब्रैकेट सीरीज है, बार्मर सीरीज, लाइमन बार्मर पासन, ऐसे निकलता है। इस तरह का स्पेक्ट्रम निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो लाइमर सीरीज, बार्मर सीरीज। ये ध्यान में रखना कि ऊपर से जितना ऊपर से गिरेगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, उतना ही अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी। वेवलेंथ उतनी छोटी होती। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किसमें वेवलेंथ छोटी होती है। तो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होती। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के, तो काइनेटिक एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, यहाँ तो अधिक न हो जाएगी। हाँ, तो ध्यान मतलब ये रिलेशन याद करके करना। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के। अगर काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो वेवलेंथ छोटी। इसका मतलब इसमें वेवलेंथ छोटी होती। इज इट क्लियर?
तो ये चीज़ है, इसमें वेवलेंथ छोटी हो जाती है और इस यहाँ तक विजिबल होता है और फिर इसके बाद जहाँ से यहाँ पे गिरेगा तो थोड़ी सी इसके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगी। तो इस नाते हम इसको क्या कर लेते हैं कि ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम होगी तो वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसी अनुसार ही चलता है। करते ही बंद हो जाता है। अभी कितना मिनट? 30 मिनट। थोड़ा सा लिख लो और लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली to hydrogen atoms. Only applicable. This model is applicable only for the hydrogen atoms. This model does not take into account the wave property of the electron. Does not, हाँ ये तो हाइड्रोजन तक ही वैलिड है, दूसरे वेव प्रॉपर्टी को ये ध्यान नहीं देता। It does not take into account the wave properties of the electron. This model Does not take into account. Doesn't take care for the wave property. Take into account the wave property of electron. Wave property of electron. It does not explain, note down, it does not explain, it demerits इसके हैं कि जहाँ ये फेल हो गए थे. It does not explain the fine structure of the spectral lines. It does not explain the fine structure of the spectral lines even in hydrogen atom. Even in hydrogen atom. तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, तो अगर आएगा तो थोड़ा लिख लेना और इसको भी आप और ये